everybody. Today we will go for the plot construction in the R.K. Narayan novel. So we can call Narayan as the Indo-Anglo novelist, and he has chosen his characters from the local, from the society we are living in. Okay, so we can say that Narayan's approach is entirely different, and he do not form any standard formula because he starts an idea of character and situation, so he makes the ground from where he conceives to be the logical development of the idea, and from here his idea develops. Okay, so the plot is very much simple. The plot is set in his own town, and he calls and he sees the middle class, everyday English serving class, public in India. So he was confined to only those phases of life which could be part of entertainment. Okay. Consequently, impersonal intellectual sides of the life were neglected in his novels. Okay. And in all these areas, we can see in these all novels, Narayan's novels, we are having intellectual interests which have led him to portray human life in deeper and general aspects of life. ठीक है, अगर बात करें विश्वास की, आर के नारायण ने अपनी नॉवेल्स में उस विश्वास को कायम रखने की कोशिश करी है जो उसने उन रीडर्स को एक इमेजिनेशन दी है. ठीक है, मिडिल क्लास के साथ कितनी सिचुएशंस डेवलप होती हैं, किस तरीके के उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते हैं, हाउ मेनी थिंग्स आर देयर इन द सोसाइटी. मैरिटल आफ्टर मैरिटल केसेस जो है वो हम देखने को हमें मिलते हैं व्हेन द वुमेन और हस्बैंड्स आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम देयर ओन पार्टनर्स. ठीक है, तो ये बहुत सी चीज़ें हमें ज़िंदगी में देखने को मिलती हैं. ओके, सो द मेन प्लॉट इज़ लाइक द वर्ल्ड ऑफ द मिडिल क्लास सिटीजन. ठीक है, उसकी जो दुनिया है, उसका जो ताना बाना है, वो मिडिल क्लास सिटीजन्स के इर्द गिर्द घूमता है. सो द चॉइस ऑफ हिज सब्जेक्ट मैटर शोज दैट ही इज़ अ वेरी क्रिएटिव आर्टिस्ट. वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है. ओके, so he begins the novels with confidence, engages our attention, and those images settle down in our minds. Okay, but it has this, if the small world is there, it has its own limitation. Okay, the lower middle class citizens of the south area. ठीक है, अगर हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखते हैं, ठीक है, चंद्रन belongs to a middle class family. Sampath's whole life is centered on the problem of making money. राजू जो है, the guide जो है, वो एक मॉनिटरी केस से ज़्यादा सोचता नहीं है. So these human beings are all of the sort of prudish, cunning and Prozac ones. ठीक है, रफ हैं, ठीक है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, so these things are like giving. Okay, the tone of his novels is very quiet and subdued. बहुत शांत है, धीरे धीरे चलती हैं. Narayan selects day-to-day incidents in his life. Okay, that happens to everyone sometimes in a life. These types of experiences we share, we have. Okay, next is something we can say. So Narayan, weaves his incidents. वो अपने कलाकारों को, अपने कैरेक्टर्स को बुनता है and presents the plot before us, that the magic influence of his imagination, undramatic even flow of the plot becomes highly interesting when the readers keep on giving the interest in the novels, in the stories. His imagination has no fringes, कहीं पर भी बुनावट नहीं है. ठीक है, it has no capricious flights of fancy. वो ऐसी बातें नहीं करता है जिन्हें ज़्यादातर आजकल की जो फिक्शन स्टोरीज में बुना जाता है ना. सो हम इस चीज़ को महसूस भी कर सकते हैं. फाइन. नाउ जो नेक्स्ट अगर हम देखें इसके अंदर प्लॉट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है. ठीक है, नाउ ही सेज आयरनी एंड हार्मनी. ठीक है, ही इज़ अ वेरी आयरॉनिक एंड हार्मोनियस स्टोरी टेलर. ठीक है, द की नोट ऑफ नारायण's इंटरेस्ट यू कैन से इज़ अ वेरी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन एंड सटल आयरॉनिक ह्यूमरस वेज एंड द वे ही टेल्स हिज स्टोरी. ठीक है, जिस तरीके से उसके कंसर्न है, ठीक है, उसे दुख भी होता है लेकिन वो एक सटायर भी करता है, ह्यूमर भी रहता है उसकी कहानियों में. ठीक है, when we call it the rise and falls of the fortunes of राजू. ठीक है, when we are talking about all these rise, ठीक है, जब उसकी ज़िंदगी में
अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, दे आर हैविंग एन अंडर करंट ऑफ ह्यूमर, तो वहाँ पर अच्छा लगता है. विच एंडियर्स राजू परमानेंटली टू अस, तो हमें राजू लगता है कि ये हमारा दिल के करीब कैरेक्टर है. ओके, बट he contains, he maintains the things who got maximum from the tourist. ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है टूरिस्ट से. He rose to success on the dancing engagement of Rosie to fall at last. ठीक है, जब उसकी शादी होती है, सगाई होती है. And end as a martyr to superstition and dogma. ठीक है, दोनों चीज़ें क्या है, जब वो अपनी खुशियों के चरम पर होता है तो वहाँ उसके साथ ट्रेजिडी होती है, और जब वो मर जाता है तो वो सिर्फ अंधविश्वास और लोगों की बनावटों की वजह से वो मृत्यु को प्राप्त करता है. ठीक है, सो ये सारी ही चीज़ें जो है वो उसमें चलती रहती हैं. ठीक है, सो नारायण्स नॉवेल्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड रियलिस्टिक पिक्चर्स अनडिस्टर्ब्ड बाय फैंटेसी. ठीक है, उसकी जो पिक्चर्स हैं वो सारी क्या है, रियलिस्टिक पिक्चर्स हैं जो ज़िंदगी में हम देखते हैं, और उसमें इमेजिनेशन का कहीं पर भी रोल जो है वो हमें नज़र नहीं आता है. ठीक है, सो द मेन इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट इज, आप ये कह सकते हैं, दैट इज़ द मेन स्प्रिंग ऑफ हिज इंस्पिरेशन, कि वो किसी चीज़ से, बसंत से वो इंस्पायर होता है और एक ऐसा एंगल उसकी तरफ अप्रोच करता है जहाँ से उसकी ज़िंदगी 360 डिग्री राउंड मार के घूम जाती है. ठीक है, सो दीज थिंग्स आर, सो उसका जो एक बताने का तरीका है आर के नारायण का, ही नरेट्स द स्टोरीज क्रिएटिंग द ह्यूमर व्हेन ही सेज दैट व्हेन अ कस्टमर स्टेप्स ओवर हिज थ्रेशोल्ड ऑल हिज बिजनेस बिकम्स माइन. जब कोई कस्टमर मेरी दुकान पर आता है तो वो सारा बिजनेस मेरा बन जाता है, एंड आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है अगर किसी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी है तो. ठीक है, सो वी कैन से दैट नारायण इज़ द राइटर ऑफ सोशल कॉमिक नॉवेल्स. ठीक है, सामाजिक ताना बाना है जिसमें, ही इज़ द राइटर ऑफ ऑल दीज क्लासेस, दोज आर मेंट फॉर. ठीक है, सो नारायण सीज all these things in his novels keeping a level of quiet tone. Okay, backgrounds are realistic. ठीक है, फोटोग्राफिक बहुत ज़्यादा है जिनको हम देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी कैन से दैट ही स्टीयर्स द मिडिल कोर्स एंड डज नॉट गो बियॉन्ड द पीपल ही हैज़ सीन एंड लिव्ड विद. ठीक है, जिन लोगों के साथ वो रहा है, जिन लोगों के साथ उसने ज़िंदगी को बिताया है, उसने उनको देखा, उससे बाहर जाने की वो कोशिश नहीं करता है. ओके, उसकी जो रियलिज्म है, ठीक है, नारायण्स रियलिज्म इन हिज डिपिक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, जब वो अपने कैरेक्टर्स को रियलिटी के साथ उनको जोड़ता है, उनको करीब लेकर आता है, फेस टू फेस करता है. ठीक है, सो हिज हीरोज आर नॉट इम्प्रेसिव फिगर्स. उनके जितने भी हीरोज हैं, दीज आर नॉट इम्प्रेसिव फिगर्स. ही कंपनसेट्स. ठीक है, वो उनको कंपेंसेट करता है दोनों की चीज़ों में. ठीक है, इन हिज नॉवल द गाइड ही ट्रीट्स द लाइफ ऑफ अ टूरिस्ट गाइड विद परफेक्ट रियलिज्म. वो अपनी ज़िंदगी को, टूरिस्ट गाइड को, एक रियलिटी के साथ जीता है. ही गिव्स द डिटेल्स ऑफ द ट्रेड एज अ टूरिस्ट गाइड. वो अपने साथ चलता है जहाँ पर उसे बताने की ज़रूरत होती है. ही टेल्स एवरीथिंग जहाँ उसे बताने की ज़रूरत नहीं होती है. ही डजंट टेल, ही डजंट एनालाइज. ठीक है, बट ही लुक्स टू द एटीट्यूड ऑफ द टूरिस्ट एंड देन ही एनालाइजेज देम. ओके, व्हेन, अब यहाँ पर हम इसको ये कह सकते हैं दैट ही इज़ प्लेइंग विद साइकोलॉजी ऑफ द टूरिस्ट. ठीक है, कि वो अपने टूरिस्ट की साइकोलॉजी के साथ खेलता है. ठीक है, सो नारायण्स मेक्स हिज रीडर्स थ्रू द थॉट करंट्स ऑफ कैरेक्टर्स एंड वॉचेस देम फ्रॉम डिस्टेंस. वो रीडर्स को कैरेक्टर्स के क्लोज लेके जाता है और वो खुद खड़े होकर उनको देखता है. ठीक है, द प्लॉट्स आर वेरी सिंपली कंस्ट्रक्टेड. ऑल द नॉवल स्टार्ट्स विथ ऑटोबायोग्राफिकल लाइन्स, जहाँ से वो अपनी स्वयं की बात करता है. अब जितने भी उसके कैरेक्टर्स हैं वो एनालाइज करते हैं. ठीक है, नरेट करते हैं, इंसिडेंट्स को बताते हैं और कैरेक्टर्स को बताते हैं. ओके, सो नारायण के जितने भी प्लॉट्स हैं दे आर सफ्स्ड विद इंटेलेक्चुअल लाइट्स. ठीक है, ही थ्रोज लाइट्स ऑन दीज थिंग्स. ही क्रेव्स, ही कैनवासेस हैज़ अ लिमिटेड रेंज. ठीक है, उसका जो कैनवस है उसकी बड़ी लिमिटेड रेंज है. ठीक है, एंड दे आर नॉर्मली नॉट अप टू दी क्रिटिसिज्म. क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, बट दे आर, you can say, the victims of the situations. Okay, we can say this. Okay, तो अब नारायण की limitations क्या है? Now the depths and pathos are there beyond the range of Narayan. He is good at undertones, but bold and dramatic flashes are not there. The dreads of poverty, the crushing loads of misery we cannot see.
वो सिर्फ मिडिल क्लास की चीज़ें चलती हैं, लेकिन वो जो गरीबी है, जो वहाँ पर गरीबी दिखाई देती है, वो उसकी उसमें हमें नहीं मिलती है, ठीक है। ही इज़ एन एक्सक्विजिट मास्टर ऑफ द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। वो कहानी अच्छी सुनाता है और कहानियों को सुनते सुनते वो रीडर्स को उनमें डुबा देता है, लेकिन रीडर्स की जो इमेजिनेशन है, जिसमें फैंसी हमें दिखाई देती है, वो उसकी स्टोरीज़ में हमें महसूस नहीं होती है। ओके, so this is the plot construction of R.K. Narayan, how the construction has been built, what are the major things we can see in his plot construction. Okay, go for this. I'm sending you the PDF, and if you have any query, you can call me. Thank you.